Good morning everyone. Welcome back to your science class. Students, in the previous video we have read the topic growing new plants from other parts of the plant. Now in this video we are going to explain the topics through which new plants reproduce or new plants grow. Students, we know that most plants grow from seeds, but there are some plants which grow from stems, leaves, roots, etc. So, new plants can grow not only from seeds but also from roots, stems, leaves, and spores. Let's learn how. फर्स्ट वी विल टेक ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. रूट्स से नया पौधा कैसे बनता है, क्योंकि रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स दीज आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जो सीड्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट का और ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. तो मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट वन इज ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स. Roots of plants such as sweet potato, carrot and beetroot store food. ये food store करती हैं and these roots contain small buds. Buds होते हैं इन roots के ऊपर. वहाँ से नया पौधा जन्म लेता है या grow करता है जब उसको favorable condition मिल जाती है. A piece of the root along with the bud is cut and planted in the soil under suitable conditions. These buds develop रूट्स एंड शूट फॉर्मिंग अ होल न्यू प्लांट. तो बड क्या होते हैं? स्मॉल लम्प ऑन द प्लांट पार्ट. प्लांट पार्ट के ऊपर स्मॉल लम्प होता है. अगर इस लम्प को या बड को सॉइल में आप प्लांट करते हो और उसको कंडीशंस अगर सूटेबल मिलती हैं तो वो नए प्लांट में ग्रो कर जाती है. सो हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ रूट्स विच कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट like carrot, dahlia, beetroot, radish, turnip and sweet potato. They can produce new plants when they get favorable conditions. Now come to the second method of reproduction through underground stem. New plants from underground stem. Underground stem क्या होता है? Some plants have stems that grow below the ground. Such stems are called underground stems. आपने जनरली देखा होगा जो स्टेम होता है वो सूरज की तरफ ग्रो करता है, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. These stems are known as underground stem like potato, ginger and onion. These are the examples of underground stems. So these stems have small buds on them. In potatoes, these buds are called eyes. अब potato कभी आप देखोगे, potato stem is known as tuber and ginger stem is known as rhizome. Onion को bulb बोलते हैं. तो potato stem के ऊपर आप देखना कभी भी eyes, nodes होते हैं और internodes होते हैं. उसको अगर आप बीच से कट करके जिसमें एक नोड या आई पार्ट होता है वो अगर उसको आप मिट्टी में डाल देते हो तो वो नए प्लांट में जर्मिनेट कर जाता है या फिर जैसे ही उसको कंडीशन सूटेबल मिलती हैं it germinates into a new plant. So the buds of potato are called eyes. Any piece of potato with an eye can grow into a new plant. सेम होता है टर्मरिक के साथ भी. So carrot, potato, ginger, onion, these are some examples of underground stem. They can grow into a new plant when they get favorable conditions. Now the next topic is न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम. एरियल स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में हम एरियल स्टेम लेते हैं. एरियल स्टेम वो होता है जो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है. अंडरग्राउंड स्टेम वो होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है. नाउ कम टू दी न्यू प्लांट्स फ्रॉम एरियल स्टेम. सम प्लांट्स ग्रो थ्रू स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो करते हैं. इन प्लांट्स सच एज रोज, बोगनविलिया एंड मनी प्लांट, अ पार्ट ऑफ अ stem containing a bud is cut and planted in the soil. एक पार्ट लेते हैं जिसमें बड होनी चाहिए, उसको क्रॉस करके कटिंग करते हैं उसकी और उसको सॉइल में दबा देते हैं. Then it develops root after some time and finally grows into a whole new plant. This method is called stem cutting. ये इसको बोलते हैं stem cutting. Second way is grafting. In plants such as rose, mango and apple, a portion of the shoot is cut and then attached to the shoot of another plant. एक shoot का
थोड़ा सा पोर्शन कट करके दूसरे शूट के साथ उसको अटैच किया जाता है. एंड द पार्ट ऑफ द स्टेम दैट इज कट इज कॉल्ड द scion and the part of which is attached is called stalk. This method is called grafting. इसको grafting बोलते हैं. दो stem cutting को mix करके attach करके उसको bind किया जाता है और उसको grafting के लिए छोड़ दिया जाता है. इस method को grafting बोलते हैं और उसको grow किया जाता है नए plant में. And the third way is layering. In plants such as jasmine and raspberry, a branch of the plant is bent until it touches the ground. मीन्स उसकी जो स्टेम होता है उसको ब्रांच को इतना बेंड किया जाता है जिससे कि वो ग्राउंड को टच करने लगती है. एंड अ पोर्शन ऑफ इट इज़ कवर्ड विद सॉइल लीविंग द ग्रोइंग टिप एक्सपोज्ड. पोर्शन कवर्ड विद सॉइल डेवलप्स रूट्स आफ्टर सम टाइम. और जो पोर्शन बाहर नज़र आ रहा होता है उससे शूट डेवलप होती है. तो ये दीज आर द मेथड्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्टेम. growing new plant from stem cutting, grafting and layering. Now the next way of reproduction, new plants from leaves. Some plants like bryophyllum have buds on the edges means जो leaf की margin होती है of their leaves, उसकी margin पे buds होती है. When such leaves are kept in moist soil, these buds grow into new plant. तो जैसे ये जो buds होती हैं मार्जिन पे लीव्स के सॉइल को टच करती हैं, वहाँ पर वो जब उनको कंडीशन मिलती है प्रॉपर तो वो नए प्लांट में ग्रो करने लगती हैं या फिर नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाती हैं. तो ब्रायोफिलम, बिगोनिया, मनी प्लांट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीव्स थ्रू विच न्यू प्लांट कैन ग्रो. तो अगर आपको कोई ब्रायोफिलम या फिर बिगोनिया या फिर मनी प्लांट का अगर आपको प्लांट ग्रो करना है तो आप उसकी एक लीफ ले सकते हो जिसमें कि बर्ड्स हों और आप उसको मिट्टी में दबा दो तो वहाँ से एक नया पौधा ग्रो करने लगेगा. नाउ द लास्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स और न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. सम प्लांट्स सच एज ferns एंड mosses डू नॉट हैव फ्लावर्स. जहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी वहाँ पे सीड्स भी नहीं प्रोड्यूस होते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू. तो दे डोंट प्रोड्यूस सीड्स, दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स. इंस्टीड ऑफ सीड्स दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स. बहुत छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्न्स, मॉसेस. ये कैसे ग्रो करते हैं नए पौधे में? कैसे नया पौधा कैसे बनाते हैं? थ्रू स्पोर्स. स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सोराय. फर्न्स के बैक साइड पर अगर लीफ के देखोगे अंडर साइड पर तो आपको सोराय नज़र आएंगे, जिनमें से सोराय में से थोड़े टाइम बाद उसके स्पोर्स रप्चर हो जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है और सोराय में से जितने भी स्पोर्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं नेचर में. और जहाँ जहाँ पर वो सोराय में से स्पोर्स गिरते हैं वो एक नए पौधे में जन्म ले लेते हैं या फिर एक नया पौधा बनाते हैं. So this is all about the growing new plants from other part of the plant. Now in the next video we will continue agriculture. Till then, goodbye, take care.